So friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your teachers, your parents, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed the concept of the acceleration. So, average acceleration and instantaneous acceleration we had learned so far. We had also solved some concept. We had also discussed some concept of the graph. We had seen by the help of the velocity versus time graph, we can get the slope of the velocity versus time graph will get you the average acceleration, and a slope in the velocity versus time graph, slope in a velocity versus time graph, ये क्या हो रहा है? Slope in velocity versus time graph at particular any instance, if we draw the tangent, then it is giving us the instantaneous acceleration that is known to us. Friends, आपके मोबाइल के स्क्रीन में क्या आ रहा है अभी? आपके डेस्कटॉप स्क्रीन और अब अभी कंप्यूटर की स्क्रीन आ रही है. Okay, fine. Okay, done. Okay. So we had also seen from the position versus time graph also we can get some idea about the acceleration. कोई मुझे बताएगा पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा आप एक्सेलरेशन के बारे में क्या जान सकते हो? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है की. एग्जैक्टली. तो एक्सेलरेशन का वैल्यू तो पता नहीं चलेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो भी पता नहीं चलेगा, बट आपको इतना ही पता चलेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है. So from the position versus time graph also we can get some information about the acceleration. तो वो acceleration पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है वो हम निकाल सकते हैं. ओके. सर. हाँ बोलो. सर जो आपकी नोट्स है आप दो नोट्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं आज? आज कर सकते हो आप कलेक्ट. बिफोर 6:30 यू शुड गो. 6:30 ऑफिस क्लोज हो जाता है, तो बिफोर 6:30 यू गो. ओके, यू शुड गो. Okay, friends, so finally what is the conclusion we got mathematically? So mathematically we got that, okay, okay, so mathematically we got average acceleration is equals to delta v upon delta t, and instantaneous acceleration dv upon dt is equals to dv upon dt. Remember that can also be written as a d square x upon dt square, if you remember. इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप. So this was the final conclusion. मतलब अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा. आपको ये भी पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि dx अपॉन dt. मतलब अगर पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, एंड पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में. तो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट न्यू टॉपिक. तो मैंने कुछ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने को दिया था.
I think I had solved the question number 10 and Prerak is having some doubt regarding the acceleration, right? Prerak? यस सर, अब क्लियर हो गया. हाँ, वो clear हो गया? Okay, fine. So question number 10 and 11, I think we had discussed. 12 also I had discussed. And 13 and 14, these two questions I had given to you to solve. तो अगर आपने सॉल्व किया है तो अच्छा है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे देख लो, मैं उनको सॉल्व करवाता हूँ, सो दैट योर कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑफ द एक्सेलरेशन बिकम्स मोर क्लियर. एक्सेलरेशन का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए, तो इसके वजह से मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ. तो 13 क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो. क्या आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay. So what is written in the question? Question is that we had given the equation of the position, and question is at which time, at what time will the acceleration of the object becomes zero? मतलब acceleration zero कब होगा? तो पहले एक काम करते हैं, acceleration find तो करते हैं, उसके बाद उसको zero करेंगे, पर उसके लिए उसको find तो करना पड़ेगा ना. तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो पोजीशन का है, एंड द इक्वेशन इज AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब. अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो कोई बताएगा मैं क्या करूंगा अभी? dx. तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी. तो पहले वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, और वेलोसिटी कैसे मिलेगा? बाय डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चलो इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं डायरेक्टली. ए बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t. तो टी. बी बाहर आ जाएगा, टी क्यूब का क्या होगा? 3t. 3t square. भैया 3t स्क्वायर होगा. पावर आगे, पावर में एक का डिक्रीमेंट, एक का डिक्रीमेंट मतलब टी स्क्वायर. तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी. अब मुझे तो क्या करना है, आई वांट टू हैव द एक्सेलरेशन इन द पिक्चर. सर 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. हाँ, दो डिफरेंशिएट करो या फिर वेलोसिटी का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो. उसे एक्सेलरेशन लाने के लिए वापस से एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ये वेलोसिटी का, अब जो वेलोसिटी मिला उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम. वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना मतलब पोजीशन का सेकंड टाइम डिफरेंशिएट. पोजीशन का एक बार किया और ये दूसरी बार हम करेंगे, मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव पोजीशन का, या फिर सिंपल वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन. चलो अब इसका ये जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करो, ये वेलोसिटी वाला जो टर्म है उसका. चलो एक्सेलरेशन को मैं ना ए डैश बोलता हूं, बिकॉज ए इज द सिंबल फॉर सम कांस्टेंट. यहाँ पे ए कोई कांस्टेंट का सिंबल है, तो मैंने एक्सेलरेशन का सिंबल चेंज करने के लिए ए डैश लिख दिया, सो दैट वी विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. तो एक्सेलरेशन के लिए सिंबल मैंने ए डैश यूज किया है. ये ए कोई वेरिएबल, एक यहाँ पे जो ए है वो कोई कांस्टेंट है. चलो इसको डिफरेंशिएट करो. सर 2a माइनस हाँ, 2a का तो 1 होगा. Minus 3bt minus into 3b. 2t. Oh, sorry. हाँ, 3b into 2. So finally, the equation of the acceleration will get is a 2a minus 6 into bt. So this is the equation of acceleration. Now the question, what is the question? They had asked the question that to make the acceleration zero, what is the time when the acceleration is zero? तो आपको acceleration zero करना है और you need to find out that time. तो मैंने acceleration को zero कर दिया. तो अब ये 6bt को मैं सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाता हूँ, तो वो टी वो सर ऑप्शन सी. ओके. सो ये हो जाएगा 2 3 6 और टी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो, तो इट विल बी a अपॉन 3b. सो इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ये एक्सेलरेशन जीरो हुआ, वो टाइम मुझे मिल गया और वही मुझे फाइंड करना था कि कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वी वांट टू फाइंड. ओके. यस सर. One more question on the same track. One more question on the same track. The question is, we had given the equation of the position. And सर हाँ बोलो. सर मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम का डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना? हाँ बराबर है, एकदम सही सही बोले आप. परफेक्ट. ओके. वर्सेस नहीं बोलना चाहिए, जस्ट चाहिए कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है,
वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, को वर्सेस नहीं विथ रिस्पेक्ट टू बोलना है। वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है, पोजीशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी देता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि AT माइनस प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब वेयर A, B and C are constant of the motion, the velocity of the object when the acceleration is 0। मतलब जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब उसका वेलोसिटी क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन है। When the acceleration becomes 0, what is the velocity? That is the question। तो एक काम करते हैं, पहले है ना एक्सेलरेशन को 0 कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर से वेलोसिटी जाएगा। चलो, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? AT प्लस, पोजीशन का जो फॉर्मूला है वो AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। चलो अब कौस्तव आप बोलोगे, कौस्तव मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन जो है वो जो वेलोसिटी देगा, तो मुझे ये टर्म का डिफरेंशिएशन करके दो कौस्तव, इसका डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए। कौस्तव, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर सर। ये एक बार और समझाओ ना, ये ऊपर वाला स्टेप। कौन सा स्टेप? ये x वाला जो लिखा है ना, वो एक तो पूरा आपने कॉपी किया और उसके बाद v इज इक्वल टू। सर ए आएगा पहले का। अरे मैंने कुछ अभी तो एक्सप्लेन किया ही नहीं, जस्ट मैंने कोई अभी एक्सप्लेनेशन किया। और differentiation of the position will get you the velocity, that is the equation। चलो अब डिफरेंशिएट करते, हाँ बोलो। सर ए आएगा उसका। जस्ट अ मिनट, किसी का माइक चालू है फ्रेंड्स। धनपाल, अच्छा ओके बोलो। सर ए आएगा और ये A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई 2T1। ओके, और वो ये फिर C आगे आ जाएगा और Okay. 3T स्क्वायर। या C आगे आ जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर। हाँ सर। अभी ये जो फॉर्मूला मिला वो तो मुझे किसका मिला? वेलोसिटी। A प्लस 2BT माइनस 3TC स्क्वायर, तो ये मिला मुझे अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन ऐसा है कि वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन बिकम्स 0। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन तो फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वेलोसिटी का जो भी मिला इक्वेशन उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dv अपॉन dt। तो इज दैट रुजु? रुजु, रुजु, रुजु इज देयर? ओके, सना, सना देसाई। यस सर। सना मुझे ये डिफरेंशिएट करके दो। बोलो सना, यस सर। इसको डिफरेंशिएट करके दो। ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। चलो मैं एक और स्टेप लिखता हूं आपके लिए, एक और स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये A प्लस 2BT माइनस 3CT स्क्वायर, मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस किया, वेलोसिटी के बदले उसका फॉर्मूला प्लेस किया। चलो अब 1 बाय 1 मुझे डिफरेंशिएट करके दो सना। ओके प्रियांशु। यस सर। क्या इसका डिफरेंशिएशन करके दो। सर अरे सॉरी 0 प्लस 2b ओके, माइनस 6ct।
3c बाहर आ जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा 2t, डायरेक्ट 6ct करते हैं। तो ये हो जाएगा 2b माइनस 6ct। ओके फाइन। तो अभी तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन जब 0 होता है तब वेलोसिटी क्या है। तो मतलब एक्सेलरेशन को 0 तो करना ही है, एक्सेलरेशन को 0 तो करना ही है। तो अगर एक्सेलरेशन को 0 करते हैं तो आई कैन से 2b माइनस 6ct विच इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 6ct इज इक्वल होता है। तो अगर t को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं तो इट विल बी 2b अपॉन 6c, तो b अपॉन 3c। But I don't want to find the time. I want to find the velocity when the acceleration becomes 0. जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है। तो कोई बात नहीं, मुझे वो टाइम तो मिल गया ना। अब ये इसका वैल्यू मैं कहाँ पे प्लेस करूंगा, ये टाइम का। तो फाइंड क्या करना है, तो भैया फाइंड तो वेलोसिटी करना है। तो दैट्स इट, दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वहां पे मैं ये टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन बिकम्स 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो उस टाइम, वो टाइम मैंने फाइंड कर दिया और वो टाइम का वैल्यू मैं वेलोसिटी के फॉर्मूला में अभी प्लेस करूंगा। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वहां पे, उस फॉर्मूला में जहां पे t है वहां पे आई कैन राइट b अपॉन 3c माइनस 3c इंटू b अपॉन 3c का स्क्वायर, t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस एक 3c कैंसल, बट एक 3c बचेगा, तो b स्क्वायर बाई 3c। तो 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस b स्क्वायर बाई 3c will get you the only 1b square by 3c. So this will be the velocity when the acceleration becomes 0. तो जब acceleration 0 होता है तो उसका at that particular moment what is the velocity? This is the velocity. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? अरे v की फॉर्मूला है, वहाँ पे जो a है वहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते। अरे वो ABC है ना, वो कांस्टेंट है। अरे वो अलग है, वो एक्सेलरेशन का सिंबल, चलो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक्सेलरेशन का सिंबल एडेस कर दिया। ओके, और ये ABC है ना, वो तो कोई कांस्टेंट है, वो एक्सेलरेशन नहीं है भैया। ओके ओके, हाँ हाँ ओके, वो अलग है, वो कोई कांस्टेंट है कोई। ओके, इज इट ओके? यस सर। Yes, तो फ्रेंड्स आई होप के इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको मतलब आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी देता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन आपको एक्सेलरेशन देता है। दैट्स इट। अब एक और अलग सा कंसेप्ट, नया कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज आल्सो वेरी 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 गुड कंसेप्ट, एंड द कंसेप्ट इज बाय द हेल्प ऑफ द velocity versus time graph we can get the idea about the displacement and the path length. I repeat, by the help of the velocity versus time graph we can get the idea about the displacement and the path length. चलो धनपाल, मैंने क्या बताया अभी आपको? धनपाल, यस सर। चलो अभी आज का टॉपिक क्या है? हम सर आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा। एम आई ऑडिएबल टू यू फ्रेंड्स? क्या मेरी आवाज आ रही है? yes sir. यस सर। धनपाल, now it is clear to you? सर प्रॉपरली नहीं है। धनपाल, यस सर। अभी आ रही है क्लियर आवाज? यस सर। ओके, अगर अभी भी किसी को आवाज में दिक्कत है तो आपके मोबाइल के जितने एप्लीकेशंस चालू है अपार्ट फ्रॉम द ये जूम, उसको क्लोज कर दीजिएगा और ऐसी जगह पे बैठोगे जहां पे नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है। ओके सर। चलो, कोई अभी हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के द्वारा
वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के द्वारा हम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब पाथ लेंथ फाइंड कर सकते हैं। देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, and assume that this is the graph of velocity versus time। तो अगर इसका जो एरिया है the area enclosed by the velocity versus time graph, तो इसका अगर एरिया फाइंड करेंगे तो डायमेंशनली सोचो कि कौन सा क्वांटिटी आएगा डायमेंशनली। L into B। हाँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वेरी गुड। L2 तो हाँ L2 नहीं आएगा, पहले सोचो, पहले ग्राफ कौन सा है। एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, बट यहाँ पे लेंथ कौन सा क्वांटिटी है? मीटर। ये Time। यहाँ पे लेंथ जो है ये हमारी लेंथ हुआ और ये हमारी ये ब्रेड्थ हुआ। तो मुझे ये बताओ कि लेंथ कौन सा क्वांटिटी है यहाँ पे? L1 आएगा। TV टाइम है। टाइम इनटू। हाँ तो यहाँ पे जो लेंथ है वो टाइम है, मतलब उसका यूनिट क्या आएगा? सेकंड। यहाँ पे ब्रेड्थ है, वो कौन सा क्वांटिटी है? वेलोसिटी मतलब क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। L1 आएगा। तो ये जो एरिया है, किसका एरिया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है उसका यूनिट मीटर आ रहा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर जो एरिया फाइंड करते हैं उसका वो ग्राफ का एरिया, मैं कोई ऑब्जेक्ट का एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट का एरिया लेते हैं तो उसका मीटर्स का यूनिट आता है, मैं ग्राफ के एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ है उसका अगर मैं एरिया फाइंड करूंगा तो उसका यूनिट मीटर आता है। अब मीटर कौन से क्वांटिटी का यूनिट है? तो मीटर इज द यूनिट फॉर द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। मम्मी समय पे के फोन लगा जो। धनपाल, सर हाँ आपका माइक बंद कर दो। सर मेरा बंद ही था। अच्छा तो ये कौन? सर वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन था ना? सर भूल से चालू थे। ओके। सो फ्रेंड्स ये जो है ना इसका एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल देगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि अगर आपको कभी भी वेलोसिटी वर्सेस फ्रेंड्स किसी का स्पीकर चालू है। हेतवी आपका स्पीकर बंद कर दीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर कभी भी आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का अगर आपको ग्राफ देते हैं, सपोज यू आर हैविंग अ ग्राफ लाइक दिस, ऐसा ग्राफ है। Let this be the 0th second, this be the 2th second, and this is the 3 second, this is the 5 second. And यहाँ पे जो हो रहा है वो -10 है, यहाँ पे +10 है, और ये जो है वो 15 पे है, 15। ओके, so it is like that. तो पहली बात के अगर आपको ऐसा पूछा हुआ है कि भाई डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एंड पाथ लेंथ फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक काम करना है, आपको है ना ये एरिया को मैं A1 कंसीडर कर रहा हूं। ये जो एरिया है, एरिया एंक्लोज्ड बाय द पोजीशन, एरिया एंक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ।
इसको मैं A2 अज्यूम करता हूं, और ये जो तीसरा वाला एरिया एंक्लोज्ड एरिया है उसको मैं A3 अज्यूम कर रहा हूं। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको A1, A2 एंड A3 फाइंड करना है। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द A1 का वैल्यू कितना होगा? 20 या 20 मीटर। A1 का है वो 22 into 10 मतलब 20 मीटर है। चलो कोई मुझे बताएगा A2 का वैल्यू कितना है? 10 ये 2 से 3 मतलब 1 हुआ, 2 से 3 मतलब 1 हुआ, लेंथ 1 हुआ, ब्रेड्थ उसका 10 हुआ। -10। हाँ, तो वो 1 into 10 मतलब उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू तो 10 मीटर ही रहेगा। एंड ये ऊपर वाला सिंबल डालने का। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ी देर में बता, आप सुनो, शांति से सुनो आप। A3 का 30। हाँ तो ये 30 मीटर। हाँ 3 to 5 मतलब 2, 3 to 5 मतलब 2, एंड ये 15 है ब्रेड्थ, तो 2 into 15 30 मतलब ये होगा 30 मीटर। अब जो ऊपर का एरिया है उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, ऊपर वाला जो एरिया है उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, एंड नीचे वाला जो एरिया है उसको नेगेटिव कंसीडर करना है। और वो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसीडर करके अगर आप फाइंड करते हो तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब क्या करना है आपको? A1 प्लस A2 प्लस A3 करना है, बट नीचे वाला एरिया अगर नेगेटिव कंसीडर करोगे, ऊपर का पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट देगा। एंड अगर आप सारे एरिया ऊपर एंड नीचे दोनों का एरिया अगर पॉजिटिव कंसीडर करके अगर आप एडिशन करते हो तो वो आपको पाथ लेंथ देगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करने का बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो आप कैसे डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ फाइंड कर सकते हो। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये जस्ट एक मेथड है, एक शॉर्टकट है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या करना है कि टाइम एक्सिस के अबो जो एरिया, द एरिया अबो द टाइम एक्सिस शुड बी कंसीडर्ड पॉजिटिव एंड द एरिया बिलो द टाइम एक्सिस शुड बी कंसीडर्ड नेगेटिव, एंड यू हैव टू टेक द अलजेब्रिक सम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का साथ जो सम होता है उसको अलजेब्रिक सम बोलते हैं। तो टाइम एक्सिस के अबो एरिया है उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, टाइम एक्सिस के बिलो जो एरिया उसको नेगेटिव कंसीडर करना है। और वो जब आप जो अलजेब्रिक सम करोगे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। बट सारे एरिया चाहे टाइम एक्सिस के ऊपर हो या चाहे टाइम एक्सिस के नीचे हो, जितने भी एरिया है वो सारे को अगर पॉजिटिव कंसीडर करते हो और उसके बाद अगर एडिशन लेते हो, इफ यू कंसीडर ऑल द एरियाज पॉजिटिव वेदर इट इज अबव द टाइम एक्सिस बिलो द टाइम एक्सिस and then you are taking the addition, then it will give you the path length. मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कैसा करना है। ये मेथड है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये आपको एक्सेप्ट करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये यस सर। ये पर्टिकुलर एग्जांपल में ऐसा कह सकता हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इसका आएगा 40 मीटर आएगा, एंड अगर पाथ लेंथ पूछते हैं तो पाथ लेंथ आएगा, इसका आंसर पाथ लेंथ का आंसर आएगा 60 मीटर। 60 मीटर। तो फ्रेंड्स आपको ये पता चला कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा आप डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हो। यस सर। यस सर, पता तो चल गया सर। ऐसे एक आध जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराना तो और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाए। हाँ वो तो है ना, वो तो है ही है, वो तो है, वो अभी करेंगे हम। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ हम उसके द्वारा फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो टाइम एक्सिस के अबो जो एरिया है उसको पॉजिटिव करो, कंसीडर करो, टाइम एक्सिस के बिलो एरिया को नेगेटिव कंसीडर करो और उसके बाद उसका एडिशन लो। तो ये एल्जेब्रिक सम जो मिलेगा एरिया का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। बट दोनों साइड के एरिया अगर पॉजिटिव कंसीडर करके अगर आप फाइंड करते हो तो वो आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड या पाथ लेंथ देगा। सो दैट इज द कंसेप्ट।
इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यही कंसेप्ट, ये कौन सा ग्राफ था, समथिंग वर्सेस समथिंग, तो कौन सा ग्राफ था ये अभी जो हमने बात किया वो वर्सेस टाइम, हाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो अब सोचो कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का सोचते हैं, तो सोचो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो उसका अगर एरिया है तो उसका यूनिट क्या होता है, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, तो एरिया वैसे लेंथ इनटू यूनिट क्या है यहाँ पे, L1t-1 यहाँ पे सेकंड नहीं, लेंथ तो जो है वो टाइम है, टाइम एक्सिस है, देखो लेंथ तो टाइम है, और ब्रीथ क्या है फ्रेंड्स, एक्सल, तो उसका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फाइनली यूनिट क्या होगा फ्रेंड्स, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो फाइनली फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which is not given in your textbook, that important thing is the area enclosed by acceleration versus time graph with the time axis gives us, it gives us a change in velocity। इसका जो यूनिट है ना वो मीटर पर सेकंड मिल रहा है, देखो, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वो वेलोसिटी का कुछ देगा, वो देगा आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूजन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, द कंक्लूजन इज, सर बोलो सर, आप 5 मिनट का फिर से समझाओ ना, जो पहले 5 मिनट करवाया ना वो। हाँ, लेट मी राइट डाउन द कंक्लूजन एंड यू विल बी अंडरस्टूड फ्रॉम द कंक्लूजन। वही मैं अभी वही मैं करवा रहा हूँ मैं। ओके, तो कंक्लूजन्स ये है, नंबर 1, area enclosed by V versus T graph with time axis will give us distance traveled and displacement। तो ये जो एरिया है वो आपको डिस्टेंस भी देगा, डिस्प्लेसमेंट भी देगा। अगर एल्जेब्रिक सम करते हो पॉजिटिव नेगेटिव को साथ में लेके, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। सारे एरिया को पॉजिटिव लेके आप सम करोगे तो वो आपको पाथ लेंथ देगा, डिस्टेंस ट्रैवल देगा। एंड सिमिलरली प्रेरक, अभी ये मैंने सिखाया, देखो सेम ट्रैक पे अगर जाते हैं, सेम ट्रैक पे, तो एरिया एंक्लोज्ड बाय एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो एक्सेलरेशन एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन एंड टाइम का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो, जैसे एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वेलोसिटी एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलता है हमको, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ना मल्टीप्लिकेशन, वेलोसिटी एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर एक्सेलरेशन ही होगा ना। अरे मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वेलोसिटी को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करो, ओके ओके सर। तो ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, बिकॉज एरिया मैं फाइंड कर रहा हूँ। एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ जो है वो वेलोसिटी है, ब्रेड्थ जो है वो मतलब लेंथ जो है वो टाइम है, ब्रेड्थ जो है वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम हमको क्या देगा, तो वो हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये लिखा मैंने,
ये पहले मैंने आपको यूनिट वाइज सिखाया था, अब मैं इक्वेशन वाइज सिखा रहा हूँ. अब सिमिलरली एरिया एनक्लोज्ड बाय द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. Acceleration versus time graph with the time axis will give us change in velocity. वो आपको change in velocity देगा. So that will give you the change in velocity. यहाँ पे आपको जो सम करना है, एरिया शुड बी एडेड एल्जेब्रिकली, मतलब ऊपर का पॉजिटिव एंड नीचे का नेगेटिव करके ही सम करना है. यहाँ पे आपको एरिया शुड बी एडेड with a positive and negative sign, with the consideration of the positive and negative sign. सर हाँ बोलो. सर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम. हाँ, एरिया का मतलब वही होता है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. यहाँ पे कंपलसरी आपको एरिया वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना, तो आपको कंपलसरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऊपर का एरिया पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव लेके आपको सम करना है. पर अगर आप ऐसे सम करोगे एरिया का, तो मतलब सोचो कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. यहाँ पे हमारे लिए लेंथ जो है वो टाइम है एंड ब्रेड्थ जो है वो एक्सेलरेशन है. तो देखो इक्वेशन वाइज इक्वेशन से देख के पता चलता है कि भाई एक्सेलरेशन इनटू टाइम तो हमको क्या देता है, तो ये तो हमको चेंज इन वेलोसिटी देता है. तो मतलब ये जो मैंने लिखा मैंने वर्ड फॉर्म में, वो इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है, इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है. तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे एरिया फाइंड करना आएगा, तो आपको मतलब वो दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मतलब एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो आपको सोचना है. सो द एरिया विल गेट यू दैट, द एरिया विल गिव यू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. जैसे यहाँ पे वेलोसिटी एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन चेंज इन वेलोसिटी है. तो ये चीज आपको यहाँ पे सीखने मिला. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये सब यस सर. ओके. तो इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी आपको भेज दूंगा. बट यहाँ पे देखो, क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फ्रॉम द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. The velocity versus time graph of the moving particle can be used to find the displacement and distance traveled by the particle during the given time interval. The area under the curve of a v versus time graph present the displacement of the particle over a given interval of time. The area of a v versus t graph above the x-axis is taken positive and the below the x-axis is taken negative. The net displacement will be the algebraic sum. Algebraic का मतलब positive negative के साथ. Algebraic sum of the areas under the v versus t graph. If we want to find the distance traveled by the particle, then the negative area should be considered to be positive. मतलब algebraic sum करना नहीं होगा, यहाँ पे पूरा सब कुछ positive करके sum करना है. तो सब कुछ positive करके अगर sum करोगे तो वो आपको distance traveled देगा. तो कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे, तो ये जो टॉपिक है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका. तो लेट्स सॉल्व सम एमसीक्यू व्हिच इज गिवन इन ऑन द बेसिस ऑफ दैट. सर मुझे 1 मिनट वो कंक्लूजन देखना है फिर से. कंक्लूजन देखना है? आया? ओके सर. ओके. यस सर. कैन आई रिमूव दिस? हाँ सर. Okay. So let's solve some numerical, solve some MCQs, so you will get the proper idea. Yep. Here it is the question number 6. देखो figure shows the graph of speed versus time, मतलब velocity versus time for the moving truck. What will be the distance traveled by the truck in the last 2 seconds?
तो आपको लास्ट 2 सेकंड का मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली व्हाट यू नीड टू फाइंड? एरिया। एरिया फॉर पर्टिकुलरली लास्ट 2 सेकंड। तो लास्ट 2 सेकंड का ही आपको एरिया फाइंड करना है। तो look at the figure and tell me what is the area the last 2 second? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, लास्ट 2 सेकंड जो बन रहा है ना, वो तो क्या बन रहा है, वो ट्रायंगल बन रहा है, देखो। तो वो एरिया क्या होगा, तो कि भाई हाफ बेस इनटू द अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे बेस कितना है फ्रेंड्स? 20 आएगा सर। हाँ, देख लेते हैं बेस कितना है। 5 to 7 क्या होगा? 2 होगा। एंड अल्टीट्यूड कितना है फ्रेंड्स? तो 20। तो 2 टू गेट कैंसल्ड, तो आंसर आएगा 20। तो यहाँ पे जो है ना, वो डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो 20 है। बट अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछते कि लास्ट 3 सेकंड का, तो आप कैसे करोगे? चलो लास्ट 3 सेकंड का अगर पूछा होता तो कैसे करोगे आप? सर वो लाइन 4 तक सर 4 to 7 लेते हैं। हाँ, तो 4 to 7 लेते। तो क्या करेंगे पहले, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले 4 सेकंड से अलग से उसका एरिया फाइंड। ये 4 to 5 सेकंड का रेक्टेंगल होता एंड 5 to 7 सेकंड का ट्रायंगल होता। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? और दोनों अलग अलग फाइंड करते थे, रेक्टेंगल का प्लस ट्रायंगल का। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस। अगर ये लास्ट 3 सेकंड का होता तो एक रेक्टेंगल का फाइंड करना पड़ता और दूसरा ट्रायंगल का फाइंड करना पड़ता। रेक्टेंगल का होता लेंथ इनटू एंड ब्रेड्थ 20 होता। अगर लास्ट 4 सेकंड के पूछता, अगर लास्ट 4 सेकंड का अगर पूछते तो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल होता और प्लस 1 ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? यू कैन डू इट। अंडरस्टूड? यस यस सर। Yes. Question number 7 is also on the same track. देखो क्या लिखा है। Figure shows the graph of the velocity versus time for the moving particle. The displacement of the particle in the time interval 1 to 20. चलो 1 to 20 का आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो पहली बात हमको ये तो पता है अभी कि वेलोसिटी वर्सेस, हमको ये तो हमको पता ही है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है। फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में क्या आ रहा है? काला काला पीडीएफ वो सब वो लिखा है वो सब। अच्छा, ओके फाइन, आ रहा है। यस यस सर। या चलो, एनीबॉडी विल टेल मी व्हाट इज द आंसर? क्या आना चाहिए आंसर? मुझे 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो हमको ये तो पता ही है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो हमको डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है एंड डिस्टेंस भी दे सकता है। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम तो ग्राफ है ही, और इस ग्राफ के द्वारा टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया एंक्लोज हो रहा है वो ये है। टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया एंक्लोज हो रहा है वो इतना है। ऊपर भी कुछ -120। ऊपर भी कुछ है, नीचे भी। बोलो, कोई बताएगा मुझे क्या आंसर आएगा? सर 0। जीरो इज द राइट आंसर। 0 सॉरी सर। बिकॉज पहली बात तो ये है कि क्या फाइंड करना है, तो कि भैया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेना पड़ेगा एंड नीचे का नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब A1 प्लस -A2 होगा। अब ऊपर का एरिया ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब हाफ बेस 10 है, अल्टीट्यूड 12 है, हाफ 10 into 12। तो ये ऊपर का जो ट्रायंगल है उसका एरिया हो जाएगा हाफ 10 into 12, मतलब ऊपर का जो एरिया है वो 60 आ जाएगा और नीचे का भी 60 आएगा, सेम टू सेम। उसमें भी 10 to 20 मतलब 10 ही होगा लेंथ, एंड अल्टीट्यूड उसमें भी 12 ही है। बट अगर ऊपर का पॉजिटिव अगर नीचे का नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो जो नेट आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा?
जीरो आएगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जीरो। बट अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर पाथ लेंथ पूछते, अगर इसी क्वेश्चन में अगर पाथ लेंथ पूछते 120 तो आपका आंसर आता 120 आता, तो आपका आंसर 120 आता। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये पता चला दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे? यस सर। यस सर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा, यहां से स्टार्ट हो रहा है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब ऊपर चला गया है। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ is shown in figure. What will be the ratio of the average acceleration during the OA interval and AB interval? यहाँ पे acceleration का ratio find करना पूछा है, तो कोई मुझे बताएगा how will you find the acceleration from the velocity versus time graph? सर ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट आएगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के द्वारा एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? तो पता है भैया, a slope of v versus t graph 1060 upon 1030 itself is a average acceleration, and slope can also be given by as a tan theta. क्या आपको ये पता है? यस सर। तो for OA region acceleration a1 is equals to tan theta 1, and for AB region acceleration is equals to tan theta 2. अब दोनों के एवरेज एक्सेलरेशन का मुझे रेशियो फाइंड करना है, तो एक्चुअल में मुझे क्या करना है, tan theta 1 अपॉन tan theta 2 करना है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। 60 क्या है? tan theta 1 tan 60 theta, tan theta 1 tan 60, tan 60 क्या होता है? 1 √3 tan theta 2 मतलब tan 30। क्या फ्रेंड्स आपको ये पता है ना ट्रिगोनोमेट्री? यस सर। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, tan 30 का 1/√3। तो tan 30 1/√3, तो आंसर आएगा 3 आएगा। 3 आंसर। तो कोई ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन डी। सोचो कि अगर एक ऑप्शन +3 है और दूसरा ऑप्शन सपोज के -3 है, तो विच इज द मोर प्रिसाइज आंसर? दूसरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे दो ऑप्शन है 3 वाले, तो विच विल बी मोर पॉजिटिव? सर -3। -3 वाला ज्यादा प्रिसाइज रहेगा, पूछो क्यों? सर क्योंकि वो ट्रायंगल है ना, इसलिए वो ए के ऊपर टॉप से नीचे जा रहा है, इसलिए वो नेगेटिव बन जाएगा। देखो पहला जो ग्राफ है ना, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। दूसरा जो ग्राफ है उसमें डिसेंडिंग लाइन है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसीडर होगा, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसीडर होगा, और इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसीडर। तो फाइनली एक्चुअल में ऐसा ऑप्शन आएगा √3 एंड -1/√3 आएगा। मैथमेटिकली भले ही वो tan थीटा है, बट प्रैक्टिकली वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। वैसे भी असेंडिंग लाइन का स्लोप पॉजिटिव रहता है एंड डिसेंडिंग लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। असेंडिंग लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, डिसेंडिंग लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। तो ये स्लोप पॉजिटिव, ये स्लोप नेगेटिव, तो रेशियो नेगेटिव ही आएगा। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव ही आंसर है, सो वी नीड नॉट टू थिंक अबाउट दिस। ओके यस ओके सो ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या मैंने करवाया आपको? नहीं सर, बाकी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 20। सर करवा दिया, शायद करवा दिया है। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे सर आवाज कट रही। नाउ आर यू एबल टू हियर मी क्लियरली नाउ? यस सर। यस। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा,
यहाँ पे कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, और तीसरा जो पार्ट है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट तो है, पोजीशन स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट, बट इट इज अ वेलोसिटी इज अ नेगेटिव, पॉजिटिव कांस्टेंट फिर जीरो फिर नेगेटिव कांस्टेंट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है चार में से कि पहले वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है फिर जीरो होता है फिर नेगेटिव कांस्टेंट होता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी। पॉजिटिव कांस्टेंट, जीरो एंड देन नेगेटिव कांस्टेंट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. Okay, now I am going to discuss the question which is a very most important. ये क्वेश्चन ही जनरली पूछते हैं इस चैप्टर में से। अच्छा, अभी कौन ज्वाइन हुआ? लेट कौन ज्वाइन हुआ अटेंडेंस के बाद? लेट कौन ज्वाइन हुआ? ध्रुविल है वहां पे? ध्रुविल इज देयर? सर मैं हेत क्यों लेट हुआ है आप? लेट क्यों हुआ? यस सर, सर मैं एक्चुअली वो भूल गया था लेक्चर। अच्छा, एंड ध्रुविल इज देयर? ध्रुविल परमार? यस सर। आप क्यों लेट आए? सर वो दूसरे लेक्चर में था। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब टाइम टू टाइम आ जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिजिक्स अदरवाइज यू विल गेट द डिफिकल्ट इन दैट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो मैं करवाने जाने वाला हूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट डिराइव द इक्वेशन ऑफ द मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन का जो डिफरेंट इक्वेशन है वो डिराइव करना है। सो ये जो 18th क्वेश्चन है वो 100% पूछेंगे आपके कोई भी एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। दैट इज अ वेरी सर पेज नंबर बताओ ना। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेज नंबर 6 पे है वो। ओके सर। ओके, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे। डिराइव द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ के द्वारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कुछ इक्वेशन मुझे निकालने हैं। वैसे ये इक्वेशन आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बट आज उसका डेरिवेशन करेंगे हम। तो आज हम कौन से मोशन की बात करने वाले हैं फ्रेंड्स? अभी हम किस टाइप के मोशन की बात करने वाले हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, आज हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड के द्वारा उसके कुछ इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड के द्वारा उसके इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। ओके सर, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? अजम्पशन। ओके सर। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ थियरी को लाने के लिए साइंटिस्ट कुछ हाइपोथेसिस करते हैं। आपको पता है बोहर ने जो मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन द 2 हाइपोथेसिस। पर वो तो गलत है ना, वो बाद में मैक्सवेल ने ऑब्जेक्शन। नहीं, बोहर का सही था, उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स थे, अदरवाइज द बोहर एटॉमिक मॉडल इज द बेस्ट। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा है, हाइपोथेसिस का मतलब कुछ चीज उसको लगती है कि वो सही है बट वो प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको हाइपोथेसाइज कर देगा कि भाई ऐसा है, ऐसा अज्यूम कर लो। ओके सर। ओके, बट उसकी बात अभी नहीं है। अभी जो बात है वो किसकी बात है? अभी जो बात है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। चलो, my first question is that if the object is performing the uniform accelerated motion, उसका acceleration uniform है, तो उसका velocity versus time का ग्राफ कैसा रहेगा? स्लोप बनाएगा कांस्टेंट। मतलब वो कर्व्ड होगा या स्ट्रेट होगा? स्ट्रेट होगा। वो कर्व्ड होगा या स्ट्रेट लाइन होगा?
होगा। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका मतलब स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। अज्यूम कर लेते हैं कि व्हेन द टाइम इज 0 द ऑब्जेक्ट इज हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो v नॉट है। एंड व्हेन द टाइम इज t, जब टाइम t हो रहा है, when the time is a t, so we'll assume that the हाँ बोलो सर अगर यही स्लोप नीचे की तरफ जा रहा होता तो वो नेगेटिव होता ना, ऑब्जेक्ट नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं होता है, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव कह सकते हैं। हाँ सर, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है ना भैया। तो ये मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर ये लाइन डिसेंडिंग होती तो वो कांस्टेंट बट नेगेटिव एक्सेलरेशन होता। यहाँ पे आई हैड अज्यूम दैट द पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे पहली चीज ये है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आपको ये पता होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो, वो सेम ही हो जाएगा। फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोथ आर द सेम। When the time is 0, the velocity is v naught, and when the time becomes t, velocity becomes a v. So according to the definition, average acceleration, but as a object is moving with the uniform acceleration, so for the uniform accelerated motion, the average acceleration becomes instantaneous acceleration. मतलब आप दो पॉइंट को कंसिडर करके स्लोप फाइंड करो या बहुत नजदीक के दो पॉइंट को कंसिडर करके आप लाइन का स्लोप फाइंड करो, वो इट विल बी कम्स आउट टू बी अ सेम। So instantaneous acceleration and average acceleration are the same here when the object performing the motion with the constant acceleration. Acceleration constant है तो चाहे आप average find करो या instantaneous बोलो, उसको same ही होगा। तो change in velocity मतलब final velocity minus initial velocity upon time interval मतलब t minus 0 मतलब t होगा। तो friends, हमको uniform accelerated motion का सबसे पहला equation मिल गया हमको v minus v0 is equals to at, मतलब v equals to v naught plus at. I don't know whether you had learned this equation or not. So this is the first equation for the constant accelerated motion. In the 8th, 9th, 10th standard, you had learned like a v equals to u plus at, where u is the initial velocity. Whether you had learned this kind of equation or not? हाँ सर, 9th में पढ़ा, मोशन में पढ़ा होगा, तो आज प्रूव किया मैंने। चलो, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का पहला इक्वेशन है। अब इक्वेशन है v is equal to ut plus half at square और v square minus u square is equal to 2as। परफेक्ट, वो सारे इक्वेशन आज हम प्रूव करेंगे। आप जो बोले वो एकदम परफेक्ट बोले, वो सारे इक्वेशन आज प्रूव करेंगे हम बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। तो अब हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। तो कौन सा ग्राफ है फ्रेंड्स? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो हमको ये पता है कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो अगर उसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं,
तो वो एरिया मुझे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल भी मिलेगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल सेम ही होगा, बिकॉज वो सेम ही होगा बिकॉज टाइम एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ ही नहीं है। जो पूरा जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के ऊपर ही है, तो वो आपको डिस्टेंस भी देगा, डिस्प्लेसमेंट भी देगा। ओके, तो अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं बोलता हूँ, चलो x बोल देता हूँ, d बोल देता हूँ। चलो मैं डिस्प्लेसमेंट को d बोलता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट इज अज्यूम टू बी d, तो d इज इक्वल्स टू एरिया। चलो कोई मुझे बताएगा ये एरिया मुझे कैसे मिलेगा? कोई बताएगा ये एरिया कैसे मिलेगा? फाइंड दिस एरिया। रेक्टेंगल तो एक काम कर सकते हैं, इसको डिवाइड, ट्रायंगल बना देंगे। हाँ इसको एक काम करते हैं, हाँ एक रेक्टेंगल बना देते हैं और एक ट्रायंगल को अलग से सोचते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो सोच सकते हैं कि ये जो नीचे का जो एरिया है उसको A1 अज्यूम कर लेते हैं और ऊपर का जो एरिया है वो A2 अज्यूम कर लेते हैं। तो चलो अब A1 कितना होगा? ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। चलो बोलो A1 कितना होगा? V0 into हाँ लेंथ उसका t है एंड ब्रेड्थ क्या हो उसका फ्रेंड्स? लेंथ जो V0 into T। हाँ परफेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ t है, ब्रेड्थ जो है वो V0 है, मतलब V0 इंटू टी हो जाएगा। प्लस अब दूसरा वाला जो एरिया है, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो V0 है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो V है और ये तो पूरा t ही है, मतलब ये जो है ना वो लेंथ तो t ही है इसका भी। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। तो बेस कितना है इसका? बेस तो t ही है, बेस तो उसका t ही है। अब इसका अल्टीट्यूड कितना होगा? ये कितना होगा? B माइनस ये जो है ना वो v है, मतलब इतना 0 से लेके ऊपर तक v है और ये V0 है और V minus V0। तो v माइनस V0 हो जाएगा। क्या ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया? 80 हो गया। Yes sir। तो फ्रेंड्स ये तो हो जाएगा V0 t प्लस हाफ v माइनस V0 इंटू टी। फ्रेंड्स v माइनस V0 तो क्या है? 80। v माइनस फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूँ। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 v माइनस V0 तो वापस से 80 है, तो 80 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर V0 t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या आपने ऐसा कोई इक्वेशन पास्ट में 9th स्टैंडर्ड में देखा था? यस सर ऐसा हमने प्रूव किया हुआ है, डेरिवेशन आता था 8th या 9th में। अच्छा डेरिवेशन भी आता था, Yes, बट sir. वो शायद से वो ग्राफिकल मेथड से नहीं होगा, वो सर वो ग्राफिकल 3 अलग अलग ग्राफ से करवाते थे। हाँ, बट यहाँ पे सिंपली हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो ओके, नाउ कम बैक टू द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 वापस से इक्वेशन 2 पे आ जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू V0 t प्लस हाफ v माइनस V0 इंटू टी। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो V0 t प्लस हाफ VT माइनस हाफ V0 t। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। तो फ्रेंड्स V0 t माइनस हाफ V0 t मतलब क्या होगा? ये हाफ VT तो रहेगा और ये 1 V0 t माइनस हाफ V0 t तो क्या बचेगा? अरे 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट होता है तो हाफ तो बचेगा ना। तो वी हैव वन मोर फॉर डिस्प्लेसमेंट, वी हैव वन मोर फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो कभी कभी आपको ये भी काम आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का ये भी फॉर्मूला काम आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इंटू टी। बट फ्रॉम इक्वेशन 1,
आई कैन से t इज इक्वल्स टू, t को सब जगह इक्वेशन बनाओ तो क्या हो जाएगा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 t इज इक्वल्स टू v माइनस v नॉट बाई a लिख सकता हूं? देखो तो Yes, sir. Yes, sir. look at the equation number 1 and make the t subject को equation. So v Yes, sir. आएगा. Yes, sir. Now putting this value in the equation number 4. Putting this value in the equation number 4. So now I can say the displacement is equals to v plus v naught by 2 into the t. But t के बदले क्या लिख सकता है मैं? v minus v naught by a. तो फ्रेंड्स अब ये v plus v naught into v minus v naught क्या होता है? v square minus v naught square. एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2. तो फाइनली फ्रेंड्स ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad. क्या इस टाइप का कोई फॉर्मूला था आपके जहन में? Yes, sir. Yes, sir. So these are the formulas of the motion with the constant acceleration. These are the formulas of the motion with the constant acceleration by the help of the graphical method. ये ग्राफिकल मेथड के द्वारा ये सारे फॉर्मूला हमने डिराइव किए. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये 4 फॉर्मूला जो है वो आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड लॉट्स ऑफ MCQ वी आर गोइंग टू सॉल्व इन विच अ मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड. मतलब whenever there is a in the question, whenever it is written that the object is moving with a constant acceleration, whenever in the question it is mentioned that the object is moving with the constant acceleration, so you must think about this all the 4 formulas, and depending on the question, depending on the data, depending on the situation, you can apply any of these 4 equations. सर इसका एक स्क्रीनशॉट भेज दोगे? हाँ, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको सारे. ओके सर. तो क्या फ्रेंड्स ये फॉर्मुलेशंस आपको समझ में आया? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. और आपको ये याद रखना है इक्वेशंस. Whenever the question asked in the form of the constant acceleration, so depending on the data, depending on the situation, you can apply any of these 4 equation. वो आपको सोच के अप्लाई करना है कि कौन सा अप्लाई करूं मैं. हर एक इक्वेशन की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है. जैसे इक्वेशन नंबर 1 देखो, v इक्वल्स टू v नॉट प्लस at. देखा इक्वेशन देखा आपने 1, तो वहां पे कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है. देखो वहां पे कहीं पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है. Yes, sir. को क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया भी नहीं है. डिस्प्लेसमेंट नाइदर गिवन नॉर इट इज आस्क्ड. then simply you can apply the formula number 1. अब सेकंड फॉर्मूला देखो तो उसका स्पेशलिटी ये है कि उसमें फाइनल वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है. मतलब सेकंड मतलब ये थर्ड वाला, सेकंड मतलब ये थर्ड वाला बॉक्स, मतलब सेकंड बॉक्स. तो उसमें देखो फाइनल वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है. देखो v इज नॉट देयर, v नहीं है. तो क्या हुआ इसका मतलब? फाइनल वेलोसिटी नहीं है. अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, या उसको पूछा भी नहीं है, उसको फाइंड भी नहीं करना है, तो आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई, मतलब ये थर्ड वन अप्लाई कर सकते हो. ऐसा दिया हुआ है कि मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड है, बट वो एक्सेलरेशन ही प्रोवाइड नहीं किया है, एक्सेलरेशन ही नहीं दिया हुआ है, खाली बोल दिया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. तो देखो ये जो फोर्थ, उसका स्पेशलिटी ये है कि उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं है. नॉट दैट. एंड फिफ्थ इक्वेशन का जो स्पेशलिटी है उसमें टाइम नहीं है. देखो टाइम नहीं है, वहां पे ही प्रेजेंट नहीं है. मतलब हर एक इक्वेशन का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है. तो ऑन अकॉर्डिंग टू दैट जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं, कोई MCQ या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आपको सोच के सोचना है, मतलब क्वेश्चन का डेटा देख के सोचना है कि कौन सा इक्वेशन आप अप्लाई करें. तो फ्रेंड्स इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, तो हम वो न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. बट आज एक और इम्पोर्टेंट थियरी मुझे आपको करवाना है. एक और इम्पोर्टेंट थियरी आज मुझे आपको करवाना है.
ये क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया फ्रेंड्स? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये समझ में आया पूरा? यस सर। यस सर। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन ऐसा है, a particle with the initial velocity v naught moves with the constant acceleration on a straight line. Find the distance traveled in the nth second. मुझे nth सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब टाइम एन हो जाएगा। हाँ, मतलब टाइम एन हो जाएगा। नहीं, तो बोला तो हाँ बट अलग है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, दोनों में डिफरेंस की। बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो कोई ऑब्जेक्ट है ना, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना पहले। फ्रेंड्स सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहां से स्टार्ट किया मोशन करना, इसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो वो फर्स्ट सेकंड जब खत्म होगा तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद थोड़ा वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो उसके बाद जो 1 सेकंड पास होगा तो वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो एक्सेलरेटेड तो वेलोसिटी बढ़ता जाता है, तो मतलब पहले सेकंड में जो ट्रैवल करेगा उससे ज्यादा सेकंड सेकंड में ट्रैवल करेगा, उससे ज्यादा थर्ड सेकंड में ट्रैवल करेगा, और उससे ज्यादा फोर्थ सेकंड में ट्रैवल करेगा। और अगर आपको कुछ ऐसा पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 सेकंड, इन 4 सेकंड्स, तो आप क्या करोगे? तो 4 सेकंड का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? यू विल अप्लाई द फॉर्मूला v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड व्हाट यू डू, यू विल पुट द t इक्वल्स टू 4 सेकंड। आप इनिशियल वेलोसिटी अगर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 4 प्लेस कर दो, तो आपको मतलब ये 4 सेकंड का पूरा, मतलब ये 4 सेकंड का आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट अगर आपको ऐसा पूछा हुआ है कि इन पर्टिकुलरली 4th सेकंड, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। देखो इसमें क्या है कि इन 4 सेकंड है, और इन पर्टिकुलरली 4th सेकंड में है। तो अब ये 4th सेकंड का मतलब क्या हुआ कि ये जो लास्ट 1 सेकंड का है ना, दैट इज अ 4th सेकंड का, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 4th सेकंड। तो क्या बात समझ में आई? यहाँ पे nth सेकंड की बात है, nth सेकंड की बात नहीं है, nth सेकंड की बात है। अगर वो nth सेकंड होता ना, nth सेकंड, तो हम क्या करते? तो आपने जो बोला कोष्टक, वो हम कर देते कि t के बदले n लिख देते। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली nth सेकंड का फाइंड करना है। यस सर। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है ना, उसमें t इज इक्वल्स टू n करेंगे ना, तो वो तो आपको मतलब टोटल देगा, आपको पूरा n सेकंड शुरुआत से, मतलब उसका इनिशियल स्टेट से पूरा n सेकंड का देगा। बट मुझे पर्टिकुलरली nth सेकंड का फाइंड करना है। अब ये nth को भूल जाओ, अभी टेम्पररी nth को भूल जाओ, इसको 4 को सोचो, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसको सोचो, अभी nth को भूल जाओ, nth बाद में सोचते हैं। तो मुझे ये फाइंड करना है। कोई मुझे बताएगा हाउ कैन वी फाइंड दिस डिस्टेंस? तो क्या करेंगे? बोलो, कोई बताएगा? किसी का लॉजिक? 4 सेकंड का फाइंड करके, हाँ सर टोटल t इक्वल टू 4 लेंगे, फिर उसमें से t इज इक्वल टू 3 का माइनस कर देंगे। दैट्स इट, थियरी इज कंप्लीटेड, खत्म। थियरी खत्म हो गया। किसने आंसर दिया? हेत। तो हेत मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 4 की बात नहीं, यहाँ पे n सेकंड की बात है, तो अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे लॉजिक? n-1। पहले हम n सेकंड का फाइंड कर लेंगे, उसके बाद n-1 सेकंड्स का फाइंड कर लेंगे, और उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे बताया ना कि पहले हम 4 सेकंड का पूरा फाइंड कर लेंगे, उसके बाद 3 सेकंड का फाइंड कर लेंगे, और 4th सेकंड का जो है उसमें से 3 सेकंड का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे 4th सेकंड का मिल जाएगा। मतलब अगर आपको 4th सेकंड का फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 सेकंड का फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 4th सेकंड का मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे nth सेकंड का फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? n सेकंड का फाइंड करोगे एंड n-1 सेकंड का फाइंड करोगे, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आपको nth सेकंड का मिल जाएगा। सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज किया? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। या प्रोग्रेशन की क्या बात, सिंपल सी चीज है कि आपको
मतलब पर्टिकुलरली 4 सेकंड का फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 4 सेकंड का पूरा फाइंड कर लो, उसमें से 3 सेकंड का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको लास्ट 4 सेकंड का मिल जाएगा। यहाँ पे कोई प्रोग्रेशन नहीं है। अच्छा सॉरी। सिंपल सी तो चीज है। तो आप अभी यहाँ पे वही लॉजिक यहाँ पे 4 के बदले n सेकंड के लिए अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड्स। देखो मैंने nth नहीं लिखा है, n सेकंड लिखा हुआ है, तो वो तो उसके लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास, v और t प्लस हाफ एट स्क्वायर, बट यहाँ पे t के बदले क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये मुझे n सेकंड्स का देगा। अब मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं उसका सिंबल में यहाँ पे n-1 लिखता हूँ सिंबल में। तो जहां पे अब t है वहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, n-1 लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो अब क्या करेंगे, अब ये रहा, तो डिस्टेंस इन पर्टिकुलरली nth सेकेंड, अब nth आया, देखो अब nth आया, तो ये उसको मैं सिंबल Sn दूंगा। वो Sn फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, वो n सेकंड का पूरा जो है उसमें से का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो मुझे पर्टिकुलरली nth सेकंड का देगा। क्या ये बात समझ में आया? Yes. तो ये nth सेकंड का फाइंड करने के लिए पहले n सेकंड का फाइंड किया, n-1 सेकंड का फाइंड किया, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मुझे वो पर्टिकुलरली वो मुझे देगा nth सेकंड का। तो ये सब्ट्रैक्शन किया। अब ये देखो इसमें से अब मैं इसको टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वीओ कॉमन अच्छा एक टर्म बढ़ाता हूँ, चलो आपके लिए एक टर्म और लिख रहा हूँ मैं। वैसे ये टर्म को मुझे निकालना था, एलिमिनेट करना था, बट आप को समझ में ना आए तो मजा नहीं आएगा, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इज दैट क्लियर टू यू? चलो अब ये दोनों टर्म साथ में लेते हैं, तो इस दोनों में से v0 कॉमन ले सकता हूं मैं क्या? तो बचेगा क्या, यहाँ पे n बचेगा, फिर बीच में सब्ट्रैक्शन बचेगा और n-1 बचेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? दोनों को साथ में लो, ये दोनों को साथ में लो, तो उसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, हाफ a को कॉमन ले सकता हूं, n² माइनस n-1 का स्क्वायर। क्या ये बराबर है, देखो तो? यस सर। यस। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 प्लस हाफ a n² माइनस n² - 2n + 1। क्या आपको ये स्क्वायर निकालना आता है ना? यस। n-1 का स्क्वायर मतलब n² - 2n + 1। इज दैट क्लियर? n-1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 1, तो 1 का मतलब v0 ही रहेगा। v0 × 1 मतलब v0 यहाँ पे a/2, और क्या बचेगा, n² - n² + 2n - 1। ये माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया, सर वो हो जाएगा। तो फाइनली यू नीड टू रिमेम्बर वन मोर फॉर्मूला, इंस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपके पास 4 फॉर्मूला तो था, अब ये 5वां फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये पर्टिकुलरली किसके लिए है, और ये जो है ना dn वाला, dn = VON प्लस हाफ an², तो ये किसके लिए है, n सेकंड्स के लिए है। क्या ये समझ में आया आपको, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना आपको? इज इट ओके फ्रेंड्स?
यस सर। यस तो सर। ये एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, इनिशियल वेलोसिटी v naught plus a by 2 into 2n minus 1. So this is the particularly distance traveled in particularly nth second. तो फ्रेंड्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन के टोटल 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है। 4 जो कन्वेंशनल थे, वो 4 कन्वेंशनल जो हमने डिराइव किया अभी, और एक ये नया फॉर्मूला है जो पर्टिकुलरली nth सेकंड का है। तो इसके बेस पे कुछ एमसीक्यू है, तो एक एमसीक्यू मैं ले लेता हूं और उसके बाद आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूं। सर हमारा स्टार्ट हो गया है, चिराग सर सर। हम लोग जा सकते हैं, 1:30 हाँ, को स्टार्ट हो तो गया। जस्ट अ मिनट। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो ये हो गया आपका। देखो ये आप ट्राई करना, जिसको चिराग सर में लेक्चर है ना, तो ये 17 क्वेश्चन ट्राई करना आप, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। कल जेडबल का लेक्चर एज पर द शेड्यूल है। ओके, मैं ओके सर। बाकी सब बच्चों को ये करवा रहा हूँ, बट 17 क्वेश्चन आप ट्राई करना। सर ये लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगा? हाँ, ये तो आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th and 3rd सेकंड। 4th and 3rd का मतलब क्या हुआ, वो पर्टिकुलर nth सेकंड की बात है। विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है 4th सेकंड का एंड 3rd सेकंड का रेशियो फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, तो फ्रेंड्स चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला क्या है, n सेकंड वाला, तो VO प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ पे ये n सेकंड वाला फॉर्मूला है, और यहाँ पे मुझे 4th सेकंड का फाइंड करना है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे वैसे दिया नहीं है, बट वो देना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ बोलो सर, मैं जा सकता हूँ? क्या बोल रहे हो? एक ही सेकंड का, अभी एक सेकंड का काम बचा है, ओनली 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड। तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 लिख दो, इनिशियल 0 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 4 8 माइनस 1 7 a बाई 2। तो यहाँ पे 7 a बाई 2 आ जाएगा। और 3rd सेकंड का अगर फाइंड करते हो, इनिशियल 0 a बाई 2, 2 3 6 माइनस 1 मतलब 5 बचेगा, तो 5 a बाई 2। और इसका रेशियो फाइंड करना है S4 अपॉन S3। तो एक 7 a बाई 2, एक 5 a बाई 2 है, तो 7 a बाई 2 अपॉन 5 a बाई 2 मतलब क्या बचेगा, 7 बाई 5। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स आज का होमवर्क और आज का स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। सर कोई एग्जाम है? एग्जाम है ना संडे, ये 3rd चैप्टर का, 3rd चैप्टर का एग्जाम है आपका। ओके, वो बाय डिफॉल्ट संडे यू विल हैव एग्जाम, एवरी संडे बाय डिफॉल्ट होता ही है। जो चैप्टर चलता है उसका एग्जाम होगा ही होगा। ओके सर टॉपिक बता दो। हाँ, वो सारा मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। एग्जाम का सिलेबस क्या है व्हाट्सएप में भेज देता हूँ आपको। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू।